Yes, friends. So here we are again to discuss something, a very interesting topic about sleep. Sleep is a question mark. Sleep is raising many questions these days, How much, how many hours we should sleep, whether we should sleep or not, is sleep is a waste of time, or sleep is very important. So let me tell you something, it is very important. It's actually one of the pillar said in Ayurveda about good health. To be healthy, you need to have a very good sleep. That's very, very important. And you see, nature has taught us about it. When a child is born, you see how many hours he sleeps. And then slowly, the number of hours of sleep start decreasing. We get into regular activities and all. And this question people ask me how many hours we should sleep. I will answer all, but let me start with the importance of sleep first. Because सबसे पहले ये जरूरी जानना है कि क्यों हमें सोना है, क्या जरूरी है सोना. तो let me tell you, every creature on this earth sleeps naturally. You understand? So sleep is a natural mechanism. ये कोई ऐसा नहीं है कि हमें सोना है. I mean, it will come by itself. Actually, we disturb it. हम इसको डिस्टर्ब करते हैं अपने काम की वजह से, अपनी जिम्मेदारियों की वजह से. समटाइम्स वी हैव ऑब्लिगेशंस. देयर आर टाइम्स यू कैन डिस्टर्ब योर स्लीप, बट देन यू शुड रिकवर योर स्लीप. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अभी क्या हो गया है कि इट हैज बिकम ए वेरी फैशन स्टेटमेंट. आई स्लीप लेस, आई एम ए वर्कोहॉलिक. तो क्या हो रहा है वर्कोहॉलिक? कार्डिक अरेस्ट आर हैपनिंग. सडन कार्डिक अरेस्ट, फिट पीपल, एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली फाइन, बट सडन कार्डिक अरेस्ट हो गया. हम समझ ही नहीं पा रहे हो क्या रहा है ये. रीजन इज, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड वेदर यू आर टेकिंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्लीप. आर यू वेल रेस्टेड? विदाउट रेस्ट तो आप कुछ कर भी नहीं सकते. आपका अगर माइंड पीस में नहीं है, वी आर सेइंग दैट स्ट्रेस इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स. मैं सबसे पहले कहूंगा कि स्ट्रेस को आप आराम से हैंडल कर सकते हो. पहली चीज है, अगर आपकी नींद पूरी है, you have slept well, your mind will think in a very, very different way. ये पता ही नहीं है. मेरे पास भी बहुत पेशेंट्स आते हैं, डॉक्टर आई स्लीप ओनली 6 hours a day. एक तो ये नया जो, बिकॉज वी आर इन ए इंफॉर्मेशन एज, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग इट, देर आर वेज. आई मीन वॉट एवर साइकिल, स्लीप साइकिल आप बना लेते हैं, आपकी बॉडी में वैसा बन जाता है. मैं ये भी नहीं कहता कि देर आर प्रोफेशंस वेयर यू हैव टू वेक अप एट नाइट. There are people who wake up at night and do creativity at night. वो ठीक है, but then they should take their adequate amount of rest, which is very, very important. तो यहां पे ये जानना, और ये कोई फैशन स्टेटमेंट नहीं है कि I sleep less and still I am active and I am wasting time in sleep. Because medically I will tell you, when you have a restful sleep, your hormones will be in balance. Your liver will detoxify the toxins properly, because liver is a very important part in our body. आप समझ रहे? Your mind function, your concentration, memory, it will be sharp, focused. Your focus will be sharp. If you are not taking adequate amount of sleep, then you may end up in accidents also. आप ड्राइव कर रहे हैं, आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, you may end up in many problems. You understand? So पहले तो ये समझ लें. अब मैं बहुत ज्यादा एग्जाम्पल नहीं दूंगा. I think you might have understood that how much sleep is important for us. Sleep is also important for our digestive juices to secrete on time. और स्लीप के साथ साथ हमारा एक जो रूटीन होता है वो बहुत जरूरी है. इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक. वो एक प्रॉपर रूटीन से सेट होती है. That's why our body secretes certain kind of secretions on certain times. So we have to regulate that, and we have to understand the importance of that regulation of biological rhythm. It's also called circadian rhythm. तो यहाँ पे हम उस डिटेल में बाद में जाएंगे. अगर आपके कमेंट्स होंगे तो आप पूछिएगा मुझसे, ये जो मैं वर्ड्स बोल देता हूँ बीच बीच में. बट मेरा पर्पस यहाँ पे यही है, पहला कि आप स्लीप की इंपॉर्टेंस को समझें, और फिर देन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हाउ टू गेट ए गुड स्लीप ऑल्सो. ये क्वेश्चन बहुत आता है कि भाई वी आर नॉट एबल टू स्लीप. कई लोग जो हैं वो दे आर लैकिंग स्लीप ड्यू टू, दे वांट टू स्लीप आई मीन, बट उनको नींद नहीं आ रही है, इंसोम्निया कंडीशंस हो रही हैं, या स्लीप डिसऑर्डर्स बन रहे हैं.
So let me tell you, first thing is, if you start disturbing your sleep, then these things start happening by itself. You understand? So yes, let's come to the part that is now we are going to discuss. Everybody is having this question, and this is very common, that how many hours we should sleep. And because in first part, when I started my video, I told that I will first lay focus on the importance. पहली चीज है कि आपको इंपॉर्टेंस पता चल गई कि भाई नींद जरूरी है. अब कितने घंटे सोना है, हाउ मेनी आवर्स वी शुड स्लीप, दिस इज ऑल्सो ए बर्निंग क्वेश्चन. So let me tell you, it's a bit relative thing. Everybody has its own requirement. लेकिन अगर हम जनरल जाएं तो at least 6 to 8 hours of sleep is very, very important. Now some people might feel fresh after taking a 6 hour sleep. Some people might feel fresh after taking 8 hours of sleep. That is individual requirement होता है ना. जैसे हम we are different. In Ayurveda we call Vata, Pitta, Kapha. ये बाद में हम इसमें पूरी डिटेल में जाएंगे. And then I will tell you that certain people require less sleep and they can still do their activities. Certain people require more sleep. लेकिन यहाँ पे adequate amount of sleep की बात हो रही है. अब ये नहीं हो कि डॉक्टर आनंद ने बोला स्लीप इंपॉर्टेंट है, सारे दिन सोते रहे, तो फिर काम कब करोगे भैया? हैं? तो ऐसा मत समझ लेना कि भैया बस सोना बता दिया डॉक्टर साहब ने, अब हम सोएंगे. तो यार ये चीज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. आई एम टॉकिंग अबाउट एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्लीप, बिकॉज ओवर स्लीपिंग इज ऑल्सो बैड. अब सारे दिन सो रहे हैं, दिन में भी सो रहे हैं, रात में भी सो रहे हैं, देन यू बिकम लेजी. आपकी बॉडी में लेजीनेस एक्यूमुलेट होंगे एंड इट विल ऑल्सो लीड टू डिजीज. जैसे कि लेस अमाउंट ऑफ स्लीप इज हार्मफुल, ऐसे ही ओवर स्लीप इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट हार्मफुल आई वुड से. तो ये भी बहुत ज्यादा, तो इसीलिए एडिक्वेट अमाउंट ऑफ आवर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब यहां पे हम एक ऐसी चीज पे डिस्कस करेंगे जिसको हम आयुर्वेद से अच्छा समझ सकते हैं. वी कैन अंडरस्टैंड थ्रू आयुर्वेदा हाउ टू गेट गुड स्लीप. तो उसके लिए सबसे पहले है रूटीन. आपको एक रूटीन बांधना होगा अपने स्लीप का. यू शुड हैव ए प्रॉपर रूटीन. आवर बॉडी विल अंडरस्टैंड दैट दिस टाइम दिस पर्सन इज गोइंग टू स्लीप. सो वंस यू मेक ए रूटीन, योर बायोलॉजिकल क्लॉक विल ऑटोमेटिकली सेट. अगर आप वेरी करेंगे नंबर, कभी आज जल्दी सो रहे हैं, परसों लेट सो रहे हैं, देन फर्स्ट थिंग आपको प्रॉब्लम्स आएंगे स्लीप के बाद में. इसीलिए मैं कह रहा हूं, आपने देखा होगा काफी सारा, ये मेरे से भी बहुत लोग कहते हैं डॉक्टर साहब देयर आर पीपल हु स्लीप वेरी लेट इन नाइट एंड दे आर हैप्पी, करते हैं. तो उन लोगों ने अपना रूटीन सेट कर लिया है. यू अंडरस्टैंड? सो दे नो दैट इवन इफ दे हैव टू स्लीप एट 3 AM, दे आर गोइंग टू स्लीप एट 3 AM, और उनका प्रोफेशन उसको अलाउ करता है. आप ये नहीं कि गलती क्या हो जाती है समाज में, बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है, हम बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को देख लेते हैं कि यार वो तो लेट सो के उठते हैं और बढ़िया है. वी हैव हर्ड अबाउट मेनी ऑफ द म्यूजिशियंस हु, क्रिएटिव पीपल whose ब्रेन इज एक्टिव एट नाइट. दैट इज देयर प्रोफेशन. डोंट जस्ट ब्लाइंडली फॉलो इट. लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? अगर आपको 9 to 5 जॉब में जाना है तो जल्दी सोना पड़ेगा ना भैया. तब तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते 3 बजे. अब यही गलती हो रही. कई लोग क्या कर रहे हैं कि 3 बजे तक जग रहे हैं एंड कोटिंग द एग्जाम्पल ऑफ मेनी अदर पीपल, और फिर वो 5 बजे उठ के, यानी कितने घंटे स्लीप हुआ? 2 hours, एंड देन दे गेट रेडी, गो टू वर्क. ना तो वर्क एफिशिएंसी अच्छी रहेगी, ना उनकी कोई पर्सनल प्रोग्रेस रहेगी, एंड दे आर हार्मिंग देयर हेल्थ ऑल्सो. तो ये प्रैक्टिकल चीजें समझनी जरूरी है. हम लोग गलती क्या करते हैं, कई बार ब्लाइंडली फॉलो करने लगते हैं. ये बहुत कॉमन हो चुका है. मैंने सुना है बड़े बड़े, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बड़े बड़े मिनिस्टर्स, बड़े बड़े म्यूजिशियंस, बड़े बड़े एक्टर्स, दे से दैट वी स्लीप एट 4 AM, 5 AM. हमारा दिन ही दिन रात में रहता है और रात दिन में दिन रात कुछ मिक्स हो जाता है. तो हम लोग समझते हैं कि दिस इज द आइडियल वे, बिकॉज उन्होंने तो इतनी तरक्की करी है इसी रूटीन से. नो, बट दे आर टेकिंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्लीप बिकॉज दे कैन अफोर्ड दैट. उनको ऑफिस 9 बजे नहीं पहुंचना है आपकी तरह. उनकी पूरी टीम है जो काम कर रही है. दे आर देयर टू डू द वर्क बिकॉज दे आर डूइंग देयर वैल्यूएबल वर्क इन नाइट. सो ब्लाइंडली मत फॉलो कीजिए किसी चीज को. अमाउंट ऑफ स्लीप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब हम दूसरी पार्ट पे आते हैं जो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं अभी बता ही रहा था, एंड देन आई स्टार्टेड एलैबोरेटिंग अदर थिंग्स. बट लेट मी कम टू द पॉइंट हाउ टू गेट गुड स्लीप. सो हमारी बात चल रही थी that I told that don't disturb your biological clock. एक सेट कर लीजिए कोई भी.
मुझे 9 बजे सोना है, 9 बजे सोना है, 10 बजे सोना है, 10 बजे, आधा घंटा इधर उधर हो जाए, नो प्रॉब्लम। अगर आप लेट सोते हैं, आप क्रिएटिव हैं, आप कंटेंट क्रिएटर हैं, वॉट एवर प्रोफेशन यू आर इन, तो 4 बजे सोते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो उस रूटीन को फिर आपको 8 घंटे यानी 12 बजे उठना है, तो यू शुड बी अफोर्डिंग दैट, यू नो what I'm trying to say here. But you should have those hours of sleep to function well, to have good energy in your life, you know, and to balance your good health. तो पहली चीज तो ये हो गई। अब जब एक रूटीन सेट हो गया आपका, तो प्रॉब्लम 90% तो सॉल्व हो गई, आपकी स्लीप डिस्टर्बेंस नहीं होगी, यू विल नॉट गेट डिस्टर्ब स्लीप। बट स्टिल समटाइम्स वी गेट डिस्टर्ब स्लीप ड्यू टू ओवर एक्टिविटी ऑफ ब्रेन। तो एक चीज और होती है, मैं हमेशा बोलता हूं, फॉर नॉर्मल पीपल हु वांट टू हैव ए मॉर्निंग रूटीन एंड दे हैव देयर जॉब्स एट 9 to 5, तो डोंट बी एक्टिव एट नाइट। ब्रेन को शट डाउन कीजिए, एक्टिविटी ज्यादा मत कीजिए रात में, क्योंकि आपको सुबह काम करना है। आप अपने नंबर ऑफ आवर्स को कहीं से भी रिड्यूस नहीं कीजिए, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो नंबर ऑफ आवर्स को आप कैलकुलेट कर लीजिए, मुझे 8 घंटे सोना है, उस हिसाब से आप अपना नाइट सेट कीजिए। ऐसा नहीं है कि भाई मॉर्निंग में तो उतने ही टाइम पे जाना है लेकिन रात में लेट सोना है, तो दैट इज नॉट गुड एक्चुअली। 1 or 2 days ओके, 1-2 दिन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती। समटाइम्स यू डू प्रेयर्स ओवर नाइट और फिर अगले दिन सो लेते हैं, रेस्टफुल हो जाते हैं, यू अंडरस्टैंड। 1 or 2 days in a month is acceptable so that you can recover yourself. एक चीज और क्वेश्चन आता है इसमें कि जो रोस्टर्स पे काम करते हैं, नाइट में काम करते हैं, वही तो वहां पे भी यही पॉइंट है कि यू शुड सेट अप योर क्लॉक। तो आपकी एक बार क्लॉक एडजस्ट हो गई बॉडी को, तो आप एडजस्ट हो सकते हैं। उसमें भी मैं एक क्वेश्चन बोलूंगा, इफ योर बॉडी इज नॉट एडजस्टिंग टू दिस टाइप ऑफ रूटीन, तो ऐसे जॉब्स में से हट जाइए, क्योंकि फिर नहीं तो आपकी हेल्थ टोल होगी। कुछ लोग अडेप्ट कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं अडेप्ट कर पाते, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। But give importance to your number of hours of sleep. That is very, very important. Or to get good sleep, you should shut down your ऐसे blue lights, और रात में जो है you eat light. You know, everybody talks about it. मुझे कुछ नया बताने की जरूरत नहीं है। बॉडी को एक शट डाउन मैकेनिज्म में ले आना होता है, and then you get your natural sleep, you know. आप अपना आराम से रात में यू लिसन टू सम गुड म्यूजिक, डू सम हेल्दी प्रैक्टिसेस, रीडिंग प्रैक्टिस कीजिए, स्क्रीन्स पे ज़्यादा मत रहिए रात में अगर आपको रात की स्लीप चाहिए तो, क्योंकि आज आप छोटी छोटी चीज़ें इग्नोर करेंगे, कल ये इंसोम्निया हो जाएगा। एंड ट्राई टू अवॉइड की थिंकिंग टू मच एट नाइट, नहीं तो फिर वो इंसोम्निया, स्पेशली उन लोगों के लिए, अगेन आई टेल यू, दोज हु हैव टू वर्क इन द मॉर्निंग, यू अंडरस्टैंड। तो जब हम स्लीप को छेड़ेंगे तभी आपकी ये बीमारियां पैदा होंगी, ये स्लीप डिसऑर्डर्स पैदा होंगे। एंड देन देयर आर वेरियस अदर लेयर्स, इट कैन लीड टू सम मेंटल डिसऑर्डर्स ऑल्सो। डिप्रेशन में भी स्लीप डिस्टर्ब होती है, ओवर थिंकिंग से स्लीप डिस्टर्ब होती है, ओवर स्ट्रेस हो जाते हैं या ओवर फिजिकली एक्टिव हो जाते हैं। समटाइम द ब्रेन बिकम्स सो एक्टिव दैट इट डजंट वांट टू शट डाउन। So these are various other sensitive things which I am going to discuss in other videos, कि किस तरीके से उसको बैलेंस किया जाए। आयुर्वेदा इज वेरी वेरी प्रोफाउंड, you know, in treating sleep disorders. ट्रीटमेंट पार्ट या उसको कैसे लाया जाए उसको और डिटेल में हम अलग वीडियोस में करेंगे, बट हियर माय attempt was to give you the importance of sleep and the general practical aspects of good sleep. And hope I tried my attempt. Hope you like this video, and please don't forget to like and subscribe if you like it genuinely, and do write in comments. Do write in comments, because you see I have time. I try to, you know, give my maximum in a limited time, you know. So this how you will tell me what is your understanding about the video, about the current topic which we are discussing. So I'll elaborate it further according to you, according to your questions, and I'm always there to answer your questions. So hope everything is fine, and you will understand the importance of sleep in life, and we will see in future what we can do more about this sleep thing, and we'll discuss more. Thank you very much.